जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरु महाराज जी थोड़ा अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। गुरु महाराज जी मैनू आग्ञा दो कि मैं सत्संग शेयर कर सका। मैं तो ਉਹੀ बुलवाना जो तुसी बुलवाना चाहते हो गुरु महाराज जी। मेरे मूहों निकलिया हर शब्द थोड़ी रजा च होवे गुरु महाराज जी। थोड़ी बड़ाई ते थोड़ा शुक्राना करे। शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। गुरु महाराज जी थोड़ा अनंतम अनंतम शुक्राना कि तुसी साडी बाह फड़ी, तुसी सानू अपनी धी बनाया, अपनी बेटी बनाया। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। साडे हमेशा अंग संग रहन दा शुक्राना। सानू ये स्वास देन दा शुक्राना गुरु महाराज जी। पूरे परिवार दा कल्याण करन दा शुक्राना। सानू दुखां तो दूर रखन दा शुक्राना। सानू अपने चरनी लान दा शुक्राना गुरु महाराज जी। हर पल दा शुक्राना, पल पल दा शुक्राना 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 गुरु महाराज जी। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ ਓਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਪਲ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। शुक्राना 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 गुरु महाराज जी। जय गुरु जी। संगत जी आप गुरु महाराज जी का जिन्ना भी शुकराना करिए उन्ना ही घट है। गुरु महाराज जी तो हर वेले आप ब्लैसिंग्स देंगे हैं, बट आप मूर्ख इंसान ऐसे हैं कि नहीं समझ पाते हैं गुरु महाराज जी की ब्लैसिंग्स। संगत जी सच्ची गल दसा जदा गुरु महाराज जी ने हाथ फड़े है ना, लाइफ 360 डिग्री घूम गई है। हाँ शुरुआत ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੁੜਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਪਿਆਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲਈ ਪਿਆਰ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਦ ਜੋੜਿਆ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਜਣੇ। ਐਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਿਤਲੀ ਰੂਪ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ। ਕਬੂਤਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸ਼ਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣੋ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਉਹ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਬਟ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਜਦ ਖੁਦ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆਏ ਆ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਕਿ ਹਰ ਰਿਲੀਜਨ ਫਰਕ ਰਿਲੀਜਨ ਹੈ। ਆਲਦੋ
ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਐਸੋਸੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹੀ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਬਟ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਐਵੇਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਹਸਬੈਂਡ, ਬਟ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਅੱਛਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕੁਛ ਅਧੂਰਾ ਅਧੂਰਾ ਜਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੂਸਰਾ ਕਿ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਕਵਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਦੇ ਐਵੇਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਮਿਰਾਕਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਐਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ, ਐਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਟ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹੀ ਸ਼ਿਵ ਹੈ, ਸ਼ਿਵ ਹੀ ਗੁਰੂ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੱਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਰੂਪ ਵੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਭਾਵ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਪਿਆਰ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਇਹ ਪਿਆਰ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲਈ ਉਹ ਵੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਪੇ ਆਪੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਕਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਔਕਵਰਡ ਹੈ, ਬਟ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਲਵ ਯੂ ਲਾਰਡ, ਯੂ ਆਰ ਮਾਈ ਕਿਊਟੀ ਪਾਏ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਯੂ ਆਰ ਮਾਈ ਪਾਏ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਹਰ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉੱਤੇ ਵਿਅਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੈਦਰ ਉਹ ਪਾਪਾ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਆਪਾਂ ਹਰ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਅਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਾਵ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਖੁਦ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਖੁਦ ਸ਼ਿਵ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼ਿਵ ਜੋ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚੈਤਾ ਨੇ, ਜੋ ਜਾਨੀ ਜਾਨ ਨੇ, ਜੋ ਹਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਹਰ ਕਣ ਕਣ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਜੋ ਖੁਦ ਭਗਵਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉਹ ਲੱਕੀ ਬਲੈਸਡ ਬੱਚੇ ਆ। ਬਟ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਨ ਆ ਨਾ, ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਡਾਮਾਡੋਲ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆ ਕੇ, ਜਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਦਿਖਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ 10% ਨੇ, 90% ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ 10% ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪਹਾੜ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਗਿਰ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਬਟ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਿਆਰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਔਰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਪਈ ਹਾਂ। ਸਭ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਜੋ ਨਵੀਂ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੇ ਵੀ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉੱਤੇ। ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਆਉਣਗੇ ਹੀ ਆਉਣਗੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੁੱਖ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਬਟ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰਕਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇਣਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ। ਆਪਾਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਾਮਾਡੋਲ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹ ਬੇਵਕੂਫ ਇਨਸਾਨ ਆ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਆ ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ ਕੁਛ ਵਿਰਲੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਉਹ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 100% ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10% ਵੀ ਨਹੀਂ, 2% ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਉਹੋ ਜਿਹੇ। ਔਰ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੈਸਡ ਬੱਚੇ ਹੈ। ਬਲੈਸਡ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਕਿ ਉਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ।
ਬਟ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਬੇਵਕੂਫ ਇਨਸਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਹਾਂ ਨਾ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਅਸਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਸਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੂਲ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਸ ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਜਿਹੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੋਵਾਂ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਜਿਹੀ ਹੀ ਹਾਂ। ਬਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਹਰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰੇ ਵਿਚਾਰ, ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬੁਰੇ ਵਿਚਾਰ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅੱਛੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਭ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਕਦੇ ਇਹ ਨਾ ਮੰਗੋ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਘਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਫਲਾਣਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਢਿਮਕਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੰਗਦੀ ਮੈਂ ਹਲੇ ਵੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸ ਤੋਂ ਮੰਗਾਂਗੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤੋਂ ਮੰਗਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮੰਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਇੰਨੀ ਔਕਾਤ ਮੇਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਦੇ ਸਕਾਂ, ਬਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੈ ਬੈਠੇ। ਉਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੰਗਣਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਖੈਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ, ਬਟ ਐਟਲੀਸਟ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਮੰਗੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਮੰਗਣ ਲਾਇਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਸ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਬੇਵਕੂਫ ਬੱਚੇ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਬਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਰ ਤੇ ਨਾ ਸਿਰ ਝੁਕਵਾਉਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਹੀ ਸਿਰ ਝੁਕਾਵਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਝੋਲੀ ਫੈਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਬਸ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਝੋਲੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਵੀ ਨਾ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨੀ ਲਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਿਆਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟਰਸਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਸਨੂੰ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਤੇ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਲਵ ਯੂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਲਵ ਯੂ, ਲਵ ਯੂ, ਲਵ ਯੂ, ਲਵ ਯੂ ਲੋਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਲਵ ਯੂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਇਸ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਨ ਫੜ ਕੇ ਮਾਫ਼ੀ ਵੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਨੋਰਮਲ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਤ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਮਾਫ਼ੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਗਲਤੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਬਖਸ਼ਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਲਵ ਯੂ, ਲਵ ਯੂ, ਲਵ ਯੂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। इस सृष्टि ਦੇ ਹਰ ਕਣ ਕਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੋਗੇ। ਆਂਟੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, 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 ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, 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 ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सारे संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के श्री पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी मेरा संध्या वेले शुक्राना सत्संग है। सबसे पहले मैं अपने पूरे गुरु परिवार से, नाते रिश्तेदारों से, ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं से, माँ मेरी कुलदेवी सिंह वाहिनी से, मेरे मंदिर के देवी देवताओं से, मेरे पूर्वजों से, मेरे पुरखों से, बड़े बूढ़ों से और मेरे परमपिता परमात्मा से माफ़ी मांगती हूँ। और जो जाने अनजाने मैंने गलती करी है, किसी का दिल दुखाया हो, झूठ बोला हो, किसी को आहत पहुँची हो, किसी के दिल की ठेस पहुँची हो, तो मैं सब के लिए माफ़ी मांगती हूँ। संगत जी, ये मेरा आज सुबह का ही शुक्राना सत्संग है। आज 28 फरवरी है संगत जी। अर्ली मॉर्निंग उठ के मैं अपने बेटे को स्कूल भेजती हूँ। उसके बाद मेरे पास 1-1.5 घंटे का सफिशिएंट टाइम रहता है। उस बीच क्या करूँ यही सोचते सोचते मैं बैठे बैठे झपकी ले लेती हूँ।
हर बार संगत जी। तो मेरे झपकी ली थी। तो क्या हुआ संगत जी, मेरा बेटा की एग्ज़ाम चल रही है, तो मैं बोलती हूँ ना हो चाहे ना हो, गुरु जी के पास खड़े होके उनसे अरदास करना कि गुरु पास साथ में चलना और अच्छे से पेपर दिलाना। और मैं भी कहती हूँ गुरु पास साथ ले जाना, अच्छे से पेपर दिला के लेकर आना। तो वो नहा लिया, तैयार हो गया। मैंने कहा कि गुरु जी के सामने माथा टेक ले। कहते हाँ ठीक है मम्मी। फिर वो खड़ा रहा, माथा टेका। हालांकि मैंने देखा नहीं कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं। तो अरदास कर रहा था ये ज़रूर देखा था संगत जी मैंने। फिर वो चला गया। फिर मैं अंदर आके थोड़ी देर में बैठी। मेरे बेटे बेटे थोड़ी देर में ऐसी थोड़ी सी नींद लेती हूँ संगत जी। उस नींद में संगत जी मुझे सपना आया। मैं सुबह 7:30 के लगभग की बात कर रही हूँ, आज सुबह 7:30 बजे की। कि सपने में गुरुजी आए और कहते हैं कि अपने बेटे से कहना कि जब भी जाए मैं चंदन तिलक लगा कर जाए मेरा। तो मैंने एकदम से जब ये सपना आया, जब गुरुजी ने बोला कि मेरा चंदन तिलक लगा कर जाए, तो एकदम से मेरी नींद खुली। तो मैंने कहा यार गुरु पास सपने में आके ऐसा बोल रहे हैं, शायद वो चंदन तिलक लगाना भूल गया और इसे चला गया माथा टेक कर अरदास करके। तो बहुत खुशी मिली संगत जी। गुरुजी का अनंतम शुक्राना कि गुरुजी याद दिलाते हैं कि बेटे को बोलना और चंदन तिलक ला के जाए। और संगत जी, गुरुजी के पहले भी मैसेज आए, उनने हमेशा कहते हैं कि जो बच्चे पढ़ने में थोड़े ढीले हैं, मन नहीं लग रहा है, बुद्धि नहीं चल रही, दिमाग में पढ़ाई बैठ नहीं रही, तो रोज़ स्कूल जाने के पहले मेरे सामने आए, सौरभ के सामने आए, माथा टेकिए और माँ से कहना, उनकी माँ से कहना, बच्चों की माँ से यानी कि हमसे कहना कि उनको चंदन तिलक लगाएं। बच्चे खुद भी लगा लें या हम माथे पे चंदन तिलक लगाएं, गुरुजी से अरदास करें। गुरुजी पढ़े लिखे। धीरे 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 वो जो बच्चे कम बुद्धि के हैं, जिनका मन नहीं लगता, मन भटकता है, पढ़ने की इच्छा नहीं होती, तो संगत जी गुरुजी कहते धीरे धीरे वो लाइन पर आएंगे और बहुत अच्छे पढ़ेंगे और बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। गुरुजी का ये बहुत पहले मैसेज आ गया था संगत जी, मेरे बेटे की एग्ज़ाम चालू होने के पहले ही आ गया था। तो गुरुपा का अनंतम शुक्राना संगत जी, और आप भी शुक्राना कीजिए क्योंकि ये सभी बच्चों के लिए है। ज़रूरी नहीं कि जो बच्चे वीक हैं पढ़ने में उन्हीं के लिए हैं। स्कूल कॉलेज जाते हुए, ऑफिस जाते हुए गुरुजी ने कहा है कि जो ऑफिस जाए, काम पे जाए, सबसे कहना है मेरा चंदन तिलक लगा कर जाए, मेरी शक्ति उनके साथ रहेगी, कोई बिगड़ते काम भी बन जाएंगे और कुछ अनिष्ट नहीं होगा। तो संगत जी, जो भी आप कर सकते हैं, जितना भी आप कर सकते हैं, जो बच्चे कर सकते हैं वो ज़रूर करिए संगत जी। तो मुझे तो गुरुपा ने इतना प्यारा ड्रीम दिया कि खुद सपने में आए और बोले कि बेटे से कहना चंदन तिलक लगा कर जाए। तो संगत जी, गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर मेरा बेटा जब एग्ज़ाम देख रहा है तो मैंने पूछा कैसा पेपर गया, कहता अच्छा गया मम्मी। तो मैंने कहा कि मुझे सपना दिया था गुरुजी ने कि चंदन तिलक लगा के गए, तो लगा के जाना बेटे से, कहना तू लगा के गया था। कहते हाँ मम्मी लगा के गया था। मैंने कहा सच बता ना, ऐसे नहीं भूल गया और तू ऐसे ही मुझे झूठ बोल रहा हो। कहते नहीं मैं लगा कर गया था। तो अब क्या पता संगत जी, लेकिन गुरु जी का काम है याद दिलाना। तो गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना, गुरुपा अनंतम शुक्राना। ये मेरा शुक्राना सत्संग था जो मैं अपने गुरुपा के श्री चरणों में रखती हूँ। अब दूसरा शुक्राना ये है संगत जी मेरा कि मेरा छोटा बेटा कल एग्ज़ाम देकर आया तो कह रहा था मेरा पेट दुख रहा है, पेट दुख रहा है। तो मैंने कहा ठीक बैठा, तो खाना दिया, उसने खाना वाना खाया। तो अब संगत जी एक मन में टेंशन चलता रहा कि इसका आए दिनों लगा रहता है कि मुझे पेट दुख रहा है, स्कूल से आके मेरा पेट दुख रहा है, आज बहुत दौड़ भागी करा दी तो पेट दुख रहा है। तो मेरे गुरुपा से आज कहा, कल कहा, गुरुपा एग्ज़ाम है और आप इसे सत्संग सुना रहे हैं, गुरुजी सत्संग सुना रहे संगत जी बच्चे से रिलेटेड कि सत्संग सुन, पेट बच्चे के पेट के में बीमारी पल रही है। तो सत्संग सुनती हूँ तो इतने डरावने रहते हैं कि लीवर ख़राब हो गया, किडनी पे असर हो गया, पेट में ये तकलीफ़ हो गई। तो बाकायदा संगत जी सत्संग तो मैं सुनती हूँ। तो मैंने गुरुपा से अरदास करी, मैंने कहा गुरुपा मुझे समझ में नहीं आ रहा पेट क्यों दुख रहा है गुरुपा, और मैं आप ही के ऊपर छोड़ा गुरुपा। उसकी एग्ज़ाम चल रही है, कुछ भी नहीं कर पाऊँगी, ना डॉक्टर के चक्कर लगा पाऊँगी, ना कोई टेस्ट करवा पाऊँगी। गुरुपा आप ही देख लीजिए। तो गुरुपा ने थॉट डाला कि सुबह जब बच्चा जाता है तो उसको प्रॉपर मील मत दे, ना हल्का नाश्ता करा कर भेज। तो मुझे ध्यान आया संगत जी, मेरे बड़ा बेटे को अ, उसको चाय के साथ रोटी पसंद आती है। रोटी में तेल
सूखा धनिया और सूखी लाल मिर्च, नमक ये लगा के चुपड़ दो तो वो यही खा के जाता है। अब उसको देखे देखे मेरा छोटा बेटा भी सीख गया, वो भी कहता है कि मुझे चाय पोंगी दो। मैं इसे चाय पोंगी बोलती हूँ संगत जी, रोटी की पोंगी बनाकर। तो मैंने 2 पोंगी बनाई, मुझे लगा ऐसा नहीं, 2 रोटी की 1 बनाई, तो मुझे लगा ऐसा नहीं कि उसे कम पड़ जाए, तो मैंने 2 की और बना दी, तो प्रॉपर 4 रोटी वो चाय के साथ खाकर गया। बट क्या है संगत जी, एग्ज़ाम टाइम चल रहा है, तो सिर्फ एक जगह बैठना है और सीधे छुट्टी होए तो घर आना है। कोई लंच टाइम नहीं कि कोई दौड़ा भागनी, कोई गेम्स नहीं, और ऊपर से बेल्ट पहनना। तो आई तो कह रहा आया, वो स्कूल से आया तो गैस बन रही थी, तो गुरुपा ने थॉट डाला कि प्रॉपर मील मत दो, उसको हल्का खिलाकर भेजो, 4 की जगह 2 रोटी खिलाकर भेजो। तो गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना कि मुझे तो टेंशन हो गई थी कि क्या है ये, क्यों पेट दुख रहा है उसका। तो गुरुपा ने थॉट डाला, तो अनंतम शुक्राना गुरुपा का। ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग था। तो संगत जी आज इतना ही, अब मिलते हैं नए संध्या वेले में। और संगत जी आज गुरुपा का बहुत ही प्यारा मैसेज आया है कि आज पूरे संगत परिवार से मेरा मतलब गुरु जी का ये मैसेज आया था कि पूरे संगत परिवार को मैं कह रहा हूँ कि आज अपने लिए कोई भी अरदास नहीं करेगा। आज सब जने पूरे संगत परिवार के लिए, उनके परिवार सबके लिए अरदास करेंगे, खुद के लिए कोई अरदास नहीं करेगा। तो गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना गुरुपा। अरदास मैं कर रही हूँ गुरुपा, हमेशा करती हूँ, आज भी करूँगी। पूरे संगत परिवार पे मेहर करना गुरुपा, पूरे संगत परिवार को ब्लेस करना गुरुपा। किसी की गोद नहीं सोनी होए, किसी का पति दूर ना हो, मांग नहीं उजड़े गुरुपा। मैं हमेशा ही कहती हूँ गुरुपा, कोई भी हो संग गुरुपा, सबके परिवार की रक्षा करना, भरा पूरा परिवार रहे। दुख सुख तो गुरुपा आएंगे सही, पर इतना बड़ा दुख मत देना गुरुपा कि ज़िंदगी भर रोएं, उबर नहीं पाए वो, अपने सामने अपने छोटे को जाते हुए नहीं देखें गुरुपा। तो ये पूरे संगत परिवार के लिए अरदास करती हूँ गुरुपा। बाकी आप सब जानते हैं कि मेरे दिमाग में गुरुपा क्या चल रहा है, मैं क्यों परेशान रहती हूँ। तो आज इतना ही संगत जी, मिलते हैं नई संध्या वेले में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारे संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के श्री पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी आज शुक्रवार है, आज शुक्राने का दिन है जो मैं अपने गुरुपा के श्री चरणों में रखती हूँ। और हाँ संगत जी, एक गुरु जी का एक मैसेज और आया है कि गुरु जी की कृपा से तेरे पति को बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिल रही है, सभी दुख दर्द खत्म होंगे, बिना देर किए शुक्राना कर। एक बहुत बड़ी खुशखबरी उसके भाग्य में लिखी जा रही है, जल्दी से शुक्राना कर दे और सारी संगत को भेज दे मेरा आशीर्वाद। तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। क्या मेरे पति की लाइफ में आने वाला है, क्या दुख दर्द जाएंगे, ये तो आप ही जानते हैं गुरुपा क्या आपने लिखा है। और पूरे संगत परिवार के लिए मैसेज आया है। तो संगत जी जब ये मैसेज आपके पास जाए या मेरा सत्संग जाए तो प्लीज़ संगत जी आप शुक्राना ज़रूर कीजिएगा गुरुपा का। और संगत जी आज यहीं तक, अब मिलते हैं नए संध्या वेले में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी सदा सहाय, गुरु जी गुरुपा सदा सहाय, मेरे पिता परमेश्वर सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरुजी, संगत जी, अनंतम जय बद्री विष्णु। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं गुरुपा की बेटी दिल्ली से हूँ और मैं गुरुपा ने बोला कि अभी अभी कर। मैं सत्संग सुन रही थी, इसलिए सत्संग खत्म होने के बाद फिर मैं सत्संग शुरू कर रही हूँ। और पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज 11 तारीख है और 6:10 हुए। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैंने 2-3 दिन से शुक्राना नहीं करा है। मैं अमृत वेला तो कर रही हूँ, मगर अमृत वेला में करना था, मैं वो भूल गई, वो मैं नहीं कर पाई हूँ। जय गुरु जी। संगत जी, मुझे सारी संगत को जय गुरु जी और गुरुपा को भी जय गुरु जी।
संगत परिवार को भी जय गुरु जी, और जो सत्संग शेयर करेगा उसको भी जय गुरु जी, और कृपा उसको भी ब्लेस करना प्लीज़, सारी संगत को भी ब्लेस करना, सब संगत के दुख काटना प्लीज़। और मैं शुरू कर रही हूँ अमृत वेला में कर रही हूँ। गुरुपा ने बोला अमृत वेला कर, मैं अमृत वाला कर रही हूँ। बीच में मेरी 2-3 दिन तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं नहीं कर पाई थी, और मैं फिर शुरू कर दिया है 3-4 दिन से, और मैं सत्संग नहीं शेयर कर पाई थी अमृत वेला में। उसके लिए गुरुपा मुझे माफ़ करना, संगत जी आप भी मुझे माफ़ करना। गुरुपा ने बहुत 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 कष्ट काटे हमारे। गुरुपा ने कहा कि होली पे बच के रहना। गुरुपा कैसे बच के रहेंगे बताओ ज़रा, हमें क्या पता कौन क्या कर रहा, कब क्या कर रहा, कैसे कर रहा, किधर से आ रहा, किधर से जा रहा है। मगर हम तो वैसे भी होशियार हैं, किसी से कोई चीज़ नहीं ले लेना दे रहे। पर हाँ, जो ब्लैक मैजिक करने वाला है वो फिर दोबारा से जहाँ से करवा के ला रहे हैं वहाँ फिर जाने वाला है, ये मुझे पता चला है। तो गुरुपा वो तो मेरे खुद के अपने ही हैं, वो सोच रहे हैं इनको क्या पता मैं किस काम से भेज रहा हूँ, पर मैं तो समझ गई ये जिस काम से भेज रहा है वो हमारा ही है, हमें करने के लिए कर रहा है। होली आ रही है, गुरुपा है तो कुछ नहीं है। गुरुपा सब देखेंगे, सब ब्लेस करेंगे, गुरुपा सब दुख काटेंगे, सबके संगत, सबके जैसे पहले काटे हैं अभी तक करा गुरुपा ने, वैसे ही गुरुपा रक्षा कर रहे हैं तो रक्षा ही करते हैं, करेंगे। गुरुपा प्रभा उनकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दो, जो करवाने जा रहे हैं उनको ऐसा रास्ता रोक दो कि वो जा ही ना, कर ही ना पाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वो तो हमें भी पता है होली आ रही है, कोई ना कोई तो कुछ ना कुछ करेगा ही। गुरुपा सारी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर कोई गलती है तो क्षमा करना। और मैं इस सत्संग बता रही हूँ कि मेरी बेटी की भी तबीयत खराब चल रही है, बड़ी वाली की, और बेटे की भी कमर में थोड़ा दर्द है। तो गुरुपा ने बोला, आज मैंने सत्संग में सुना कि एक नींबू वार के उस पर नमक लगा के और 5 लौंग लगा के हनुमान जी के मंदिर में रखा। तो शुक्राना गुरु जी, आपका उपाय ये तो मैं कर लूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना। और गुरुपा कभी कभी तो ऐसे आते हैं कि एक ही बार में सारे उपाय बता दिए जाते हैं, तो वो नहीं समझ में आते हैं कि कौन सा उपाय कैसे करना है और कब करना है। और ये माता रानी वाला जो चोला चढ़ाना है, तो गुरुपा ये कौन से दिन चढ़ाना है? शीतला माता को, शीतला माता वाला चोला जो चढ़ाना है वो कौन से दिन चढ़ाना है गुरुपा? ये तो मुझे मालूम नहीं है, ये तो बताया ही नहीं। और एक बार चढ़ाना है, 2 बार चढ़ाना है, कितनी बार चढ़ाना है ये भी बताना। और माता रानी काली माता का भी बताना कितनी बार चढ़ाना है। ये पहले भी नहीं बताया था, बस एक बार बताया था, वो मैंने चढ़ा दिया था। इसलिए अब दोबारा बताया है, तो संगत जी पूरा बताना और अच्छे से समझा के बताना कि कितनी बार चढ़ाना है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, जो भी है। और शीतला माता का भी और काली माता का भी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। और गुरुपा ने बोला अभी कर, अभी। तो ये मैंने इतना छोटा सा सत्संग है, बस इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुपा, क्योंकि सुबह अमृत वेला में मैं जब अमृत वेला में बैठ के जाप करती हूँ तो बड़ी झपकी आती है गुरुपा। पता नहीं कौन सी नेगेटिविटी एनर्जी है। प्लीज़ गुरुपा उसको दूर करें, जो झपकियाँ आती हैं उसे दूर करें प्लीज़।
पता ही नहीं चलता कि कब झपकी आ गई जाप करते करते बैठे बैठे। प्लीज़ गुरुपा उसको दूर करो। और जो आपने आज मैसेज दिया कि तेरा बेटा कुछ गलत काम कर रहा है, तो प्लीज़ गुरुपा मैंने तो आपसे पहले ही अरदास लगा रखी है कि इसको कोई काम दिलाओ, काम दिलाओ, ऐसा ना कोई गलत काम करने लग जाए। मैं तो कब से आस लगा रखी है आपसे, कब से कह रही हूँ उसको कुछ भी काम दो जो थोड़ा बहुत भी करके लाए और मुझे दे, घर का खर्च चले। लेकिन जब उसका कोई काम ही नहीं लग रहा, कुछ कर ही नहीं पा रहा है, कुछ चल ही नहीं पा रहा, तो बच्चा गलत रास्ते पे तो जाएगा ही जाएगा। ये तो आप देखें गुरुपा, आपने जो करना है वो आप ही करेंगे, मुझे नहीं मालूम बस वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। मैं तो बहुत जब भी सत्संग करती हूँ जब भी यही बात बोलती हूँ कि बेटे को कुछ जॉब से ब्लेस कर दो, वो कुछ अच्छा काम करे, गलत काम पर ना जाए, गलत संगत में ना पड़े, गलत काम ना करे गुरुपा। जिसका डर है वो ही होने लगा है। तो गुरुपा आप ही देखें ना, मैंने जब आपके ऊपर छोड़ रखा, आप बेटा आप ही समझे उसको, आप ही ठीक करेंगे, सही रास्ते पे सब बच्चों को आप ही लाएंगे। बेटी भी बैठ गई है दोनों, और बड़ी की तबीयत खराब है, छोटी भी बैठी हुई है। गुरुपा कैसे होगा समझ में नहीं आता, दिमाग तो वहीं जाता है। आप बोलते सोचती बहुत है, सोचती बहुत है, सोचे नहीं तो क्या करें। आपका मंत्र तो जाप करती हूँ, गुरुपा से अरदास लगाती हूँ। गुरुपा आपने बोला था 2 पर्चियाँ डाल दें, 1 पर्ची निकली जॉब वाली, मगर अभी तक कुछ नहीं हुआ। गुरुपा प्लीज़ उनको कहीं रास्ते से लगा दो कि उनका भी मन ना भटके, बच्चियों का भी इधर उधर ना। सबको लगता है कि 2 पैसे तो हमारे हाथ में आने चाहिए। गुरुपा प्लीज़ गुरुपा उनको ब्लेस कर दो। आपसे अरदास है ये, बस बच्चों के लिए है और क्या है, सभी काम बच्चों के लिए है, बस इन पे कोई कष्ट नहीं आना चाहिए गुरुपा, इन पे कोई कष्ट नहीं आना चाहिए गुरुपा। और अब मैं बस अपना सत्संग यही विराम करती हूँ, बाकी बाद में करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, होली की शुभकामनाएं गुरुपा को भी और सारी संगत को, संगत परिवार को भी होली की शुभकामनाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 शुक्राना, उठते बैठते शुक्राना शुक्राना, चलते फिरते शुक्राना 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 गुरुपा, सोते जागते शुक्राना 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 शुक्राना। मैं तो आपके सारे सत्संग सुनती रहती हूँ, मगर दिमाग में बहुत कम बैठता है, सिर में बहुत दर्द होता है गुरुपा, दिमाग काम ही नहीं करता, कुछ याद ही नहीं रहता है। प्लीज़ गुरुपा कुछ करें तो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अगर अनंतम अनंतम शुक्राना। अगर कोई गलती हो गई है तो क्षमा करना, संगत जी क्षमा करना, और गुरुपा आप भी क्षमा करना। जय गुरु जी, शुक्राना। अब मैं मुझे आज्ञा दे। जय गुरु जी, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का मैसेज था कि पुत्र संध्या वेले का शुक्राना कर। गुरु जी बिल्कुल मैं संध्या वेले का शुक्राना कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं मंत्र जाप के द्वारा शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आप की महिमा का तो क्या कहना, जो भी आपसे एक बार जुड़ता है ना गुरुजी, फिर वो आपको कभी भूल ही नहीं पाता, आपको मतलब आपसे दूर जा ही नहीं पाता है। वो
अब आप उसकी ज़िंदगी बन जाते हो और हमेशा उसके साथ ही रहते हो। वो अब आपसे दूर ना, वो आपसे दूर जा नहीं सकता बिल्कुल भी। गुरुजी आप इतने प्यारे हो, सब पर इतनी मेहर करते हो, इतनी ब्लेसिंग देते हो गुरुजी। शुक्राना उसका गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब तो ये हालत हो जाती है कि कोई भी काम करते या पूजा करने बैठो तो सबसे पहले जय गुरुजी ही निकलता है। गुरुजी उसका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अपना संगत बनाने का, अपनी बेटी को प्यार देने का, उसको मेहर करने का, उस पर हाथ रखने का। जय गुरुजी। हमेशा गुरुजी इसी तरह अपनी बेटी के साथ रहिएगा और हमेशा उस पर अपना हाथ बनाए रखिएगा और अपना ही प्यार देते रहिएगा। जय गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप कह रहे थे बेटी अब ज़्यादा परेशान मत हो, खुश होने के दिन तेरे आ गए। खुश रहे गुरुजी, मैं बहुत खुश हूँ, मैं परेशान नहीं, बिल्कुल भी नहीं हूँ। आपकी बेटी अब बन गई हूँ, इसलिए मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूँ और मुझे किसी चीज़ की चिंता नहीं। जब आप मेरे साथ हो तो मुझे और किसी चीज़ की कोई भी वो नहीं है। बस आप इतने कष्ट काटते हो सभी के, सभी संगत के गुरुजी, उसका आपका अनंतम अनंत शुक्राना। आपने कहा मैं तेरे घर आऊँगा, तेरी सारी बीमारियाँ निगेटिव ले जाऊँगा। गुरुजी आप उसका अनंतम शुक्राना गुरुजी। वाकई में शरीर में बीमारियाँ तो बहुत सारी हैं, क्या करूँ समझ में नहीं आता। प्लीज़ गुरुजी उनको ज़रूर ख़त्म कीजिए कि उनके बिना बहुत वीकनेस, अब 2-3 दिन से बहुत जुकाम और बुखार चल रहा था तो बहुत ज़्यादा वीकनेस आ गई है। प्लीज़ गुरुजी, बस वैसे तो मैं ठीक हो गई हूँ। आपने कहा था तेरी सारी बीमारी रात में काट दूंगा। का शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी अपनी मेहर करने का। मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, आप ज़्यादा परेशान मत होइएगा प्लीज़ गुरुजी। आप भी बहुत सभी की पूरे दिनों रात सभी की परेशानियों को हल करते हैं गुरुजी। मैं भी कहूँगी प्लीज़ आप भी अपना ख्याल रखिएगा, थोड़ा आराम कीजिएगा गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम आपका शुक्राना गुरुजी। मैं मेहर करने गुरुजी सारी। अभी मैं सत्संग में नहीं हूँ, गई हूँ मैं बड़े मंदिर। आपने कहा था मैं तुझे बड़े मंदिर बुलाऊंगा, मैं बड़े मंदिर एक बार गई हूँ, लेकिन हाँ आने का दो मेरा बहुत मन है। लेकिन देखती हूँ होली के बाद अगर मौका लगता है तो मैं पूरी कोशिश करूँगी, क्योंकि अभी बेटे का थोड़ा समय ऐसा नहीं चल रहा है। और एक गुरुजी, मैं अब वही मेरा बस एक वही मेरी अरदास है कि एक तो सबसे पहले आप मेरे हस्बैंड की सब हेल्थ ब्लेस करने को आपने कहा था कि मैं ज़रूर करूँ, और उनकी हेल्थ ब्लेस कीजिए गुरुजी, जिससे वो थोड़ा ठीक हो जाए और हो सके तो थोड़ा काम, अपना ही काम थोड़ा ज़्यादा सही तरीके से करें, बाकी आगे देखते हैं। और गुरुजी आपने तो मुझे इतना प्यार और इतना अपनापन दिया गुरुजी, उसके लिए मैं समझ नहीं आ रही किस तरीके से आपका शुक्राना अदा करूं। और आप जो भी कृपा करेंगे और जो भी मेरे को ब्लेस करेंगे उसके लिए तो मैं कैसे शुक्राना, आपके लिए बहुत छोटा शब्द है, उसके लिए समझ में नहीं आ रहा गुरुजी क्या कहूँ। आपका बहुत बहुत शुक्राना, थैंक यू गुरुजी, बहुत बहुत। तो गुरुजी अपनी संगत को भी अपना प्यार और ब्लेस कीजिएगा। बातें तो बहुत सी हैं, करते समय थोड़ा भूल भी जाती हूँ, नादान बेटी समझिएगा गुरुजी। और आपने कहा कि तेरे पर काला जादू किया गया गुरुजी, मैंने तो ये सब बातें कभी सुनी भी नहीं है, अब मैं सुन रही हूँ इन सब के बारे में। मैं तो कुछ भी नहीं जानती। तेरे अपने बेटे को बचा ले, तो ये जी गुरु, ये सब चीज़ें गुरुजी आपको ही देखनी है। जो भी जैसा भी है उसको कर रहा है, या तो उसको ख़त्म कीजिए या उसके पास ही वापस भेजिए, क्योंकि इन सब बातों के बारे में मैंने
कभी नहीं सुना और ना मैं इन सब बातों के बीच में कुछ करने के बारे में जानती हूँ। ये सब आपको ही करना है। आपने कहा मैंने तेरी रक्षा के लिए करवा दिया, उसका गुरुजी बहुत-बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना आपका गुरुजी। बस इसी तरह गुरुजी मेरे पूरे परिवार की प्लीज़ गुरुजी बस रक्षा करते रहिएगा और जो भी कष्ट आए या जो भी परेशानी हो उस पर उसकी रक्षा कीजिएगा गुरुजी। आपसे बस यही मेरी है प्रार्थना है गुरुजी। मैंने आपसे एक अरदास लगाई थी अपनी छोटी बहन की। उसके हस्बैंड ने 2-3 हॉल बनवाए थे, 2-3 साल हो गए। उठने के लिए लोग आते हैं लेकिन लेते नहीं। प्लीज़ उसकी थोड़ी-सी समस्या हल कर दीजिए। वो बहुत परेशान है, उसके हस्बैंड की भी बहुत हालत ख़राब हो रही है इस समय। तो एक बार कह रही थी कि गुरु इसके तुम मेरी कर सको तो बोल देना गुरुजी। मैं उसकी अरदास लगाऊंगी कि उसके बस हॉल उठ जाए, जो भी लेना चाहे वो ले ले। गुरुजी आपका बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। थोड़ी सी उसकी मदद हो जाएगी। उसके बच्चे भी शादी के लिए हैं तो वो परेशान बहुत हो रही थी। प्लीज गुरुजी बस आप और आपने कहा अरदास लगाया कर तो उसी समय किया कर। तो मैंने कहा आज मैंने लगाई है अरदास गुरुजी। आपने कहा था भूल गई कुछ नहीं कि मैं तुझे रात में आऊंगा तेरे कष्ट काटने। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब मैं सत्संग में मैंने एक बेटी का सुना था, वो बेचारी बहुत परेशान थी। गुरुजी ऐसे बच्चों को जरूर जरूर उन पर कृपा मेहर कीजिए जो बेचारी बेटियां घर में खाने को उनको इतनी परेशानी है। ये सुन के उस दिन मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ और मुझे बहुत बुरा लगा कि बताइए हमारी बेटियां इतनी परेशान हैं। थैंक यू गुरुजी, उन पर जरूर अपनी मेहर कीजिए। और जो भी मेरा शुक्राना भाई ये कर रहे हैं शेयर, मैं उनके लिए भी चाहूंगी आप उन पर भी बहुत ब्लेसिंग दीजिए, उनको बहुत प्यार दीजिए, उन पर मेहर कीजिए गुरुजी। जो आप मेरा जो भी बातें हम आप तक बोलना चाहते हैं आपके वो शुक्राना करते हैं उसके लिए वो आप तक पहुंचाते हैं। उसका अनंतम अनंतम शुक्राना। इस उनको भी बहुत प्यार दीजिएगा गुरुजी। जय गुरुजी। मैं आप अपना शुक्राना यही विराम देती हूँ मंत्र जाप के द्वारा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। थैंक यू गुरुजी। सारी संगत पर कृपा कीजिएगा, उनको ब्लेसिंग दीजिएगा, मेहर कीजिएगा। जय गुरुजी। शुक्राना ओम गुरुजी। नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, अनंत अनंत शुक्राना। संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। जब से मेरा आपने हाथ पकड़ा है सब कुछ जीवन में अच्छा ही हो रहा है। मेरे पिताजी, आपने मेरे बहुत सारे कष्टों को काटा है। आज भी मुझे बचाया था पापा आपने, मतलब कल बचाया था। गाय मुझे मार दी थी पापा, बहुत तेजी से गाय दौड़ रही थी। आपका बहुत बहुत शुक्राना। और पापा मुझे ठोकर लगी थी तो उसमें भी आपने बचाया मुझे, उस बात का भी बहुत बहुत शुक्राना। महाराज मेरे परिवार की रक्षा कर रहे हैं आप, बहुत बहुत शुक्राना महाराज जी। मेरे पिताजी, मेरे गुरुपा, पल पल का शुक्राना गुरु जी महाराज। श्वास श्वास का शुक्राना, हमें जीवन दान देने का शुक्राना,
हमारे कष्टों को हरने का शुक्राना, हमें सुबह को उठाने का शुक्राना, रात को सुलाने का शुक्राना। जय गुरु जी महाराज। मेरे परमपिता, आपने हमें अच्छे अच्छे कपड़े दे रखे हैं पहनने के लिए, उस बात का शुक्राना। खाने के लिए देते हैं महाराज जी, आप उस बात का शुक्राना। महाराज जी, हमने हमें छत दे रखी है, अपना घर दे रखा है, सब आपकी कृपा से ही हुआ है। शुक्राना महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। मेरी परिवार के कष्टों को हरने का शुक्राना। गुरु महाराज जी, बहुत बहुत शुक्राना। मेरे प्रभु, मैं जानती हूँ पापा, आप मेरे अंग संग रहते हैं, मुझे तितली रूप में भी दर्शन देते हैं महाराज, उस बात का शुक्राना। ज्योति रूप में भी दर्शन देते हैं पापा, उस बात का शुक्राना। हर पल का शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना। गुरु महाराज जी, जो कुछ भी कर रहे हैं आप ही कर रहे हैं पापा, और आप ही करेंगे महाराज। आप हमारे परम पिता हैं, आप ईश्वर हैं। मैं आपकी शरण में हूँ, ऐसी चरण में लगा कर रखना पापा। महाराज जी, सारी संगत के कष्टों को हरना, कोई दुखी न रहे, कोई बीमार न रहे भगवान, सबकी रक्षा करना, सर्वदा भला करना। पापा, पता नहीं आप कितने जन्मों से साथ हैं हमारे, सब कुछ आपने ही किया है और अब भी कर रहे हैं। हमें सब कुछ मतलब दे रखा है आपने, परमात्मा, आपने कोई कमी नहीं छोड़ रखी, सब कुछ आप हमें दे रहे हैं, उस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्राना पापा, कोटि कोटि शुक्राना पापा। जय गुरु जी, आपके कमल चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। पापा जी, मैं मंत्र जाप करना भूल गई, गुरु जी महाराज क्षमा करना, संगत जी मुझे क्षमा करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, सर्वदा भला करना मेरे प्रभु, आपके कमल चरणों में कोटि कोटि अनंत अनंत अरबों करबों शुक्राना पापा जी। मुझसे जो गलती हो गई हो परम पिता, मुझे क्षमा करना। जय गुरु जी महाराज, जय मेरे परम पिता, सर्वदा भला करना ईश्वर, सबका भला मेरे प्रभु। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, लव यू गुरु जी, मेरे प्यारे पापा, मेरे प्यारे गुरु जी। जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। ओम जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर वेला का शुक्राना गुरुजी, सुबह से लेकर शाम का शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आज मैं शुक्राना सत्संग बोल रही हूँ। संगत जी, मेरी माँ जो है कुंभ जाने का सोची थी कि कुंभ जाएंगे नहा स्नान करने के लिए। तो एक रोज़ मेरे पापा का तबीयत ख़राब था, नहीं, फिर बोली कि कैसे जाएं, पापा का तो तबीयत ख़राब है, नहीं जाएंगे। हमसे बोली तो फिर क्या हुआ, पापा खुद बोले क्या तुम चले जाओ सो छोटा लड़का के साथ में, हम टिकट करवा देते हैं तुम्हारा। तो माँ बोली कैसे जाएंगे, आपका तबीयत ख़राब है। लेकिन फिर भी माँ को इतना खुशी हुआ, बोली कि हम बहुत खुश हो गए कि चलो, हमको नहाने का मन था, इस बार बहुत सूफ लगा हुआ है। तो तैयार हो गई छोटा भाई के साथ में, मेरा छोटा भाई के साथ गई कुंभ नहाने। भीड़ तो बहुत था,
चलना भी बहुत पड़ा, लेकिन कुंभ नहाने गई, नहा के बोली कि वहाँ पे हम छतरपुर का देखे गाड़ी लगा हुआ था बस। तो माँ बोली क्या मन हो रहा था क्या पूछे कि हमको भी छतरपुर ले जाइएगा। तो फिर बोली कि नहीं हम कैसे जाएंगे, अभी जब गुरुजी बुलाएंगे तब जाएंगे। तो वहाँ से आके हमसे माँ बात की, कल बताई हमको, इतना दिन से नहीं बताई थी। कल बात किए तो बोलती है कि जानती है हम गए थे ना वहाँ पे कुंभ नहाने, तो हमको वहाँ छतरपुर का गाड़ी मिला था, मन में हो रहा था कि हम जाएं, उसी से गुरुजी का मंदिर जाके हो आएं, छतरपुर का मंदिर। लेकिन फिर सोचे नहीं कैसे जाएंगे, उन लोग हमको ले जाएंगे या नहीं। तो कोई बात नहीं, हम बोले नहीं, जब गुरुजी जाएंगे तब बुलाएंगे तो अपने चले जाओगे। तो वही शुक्राना सत्संग है। मन को बहुत खुशी हुआ छतरपुर का बस देख के, कुंभ नहा के आई, उनको बहुत अच्छा लगा। बहुत दिन हो गया कुंभ नहा के आने का, लेकिन कल माँ बोली कि मेरे तरफ से शुक्राना सत्संग कर देना। तो बोले ठीक है। अब छतरपुर जाना चाहती है, गुरुजी कब बुलाएंगे। हम लोग तो बिहार से हैं और यहाँ से जाने में तो बहुत दिन लग जाएगा जाने में, और उसके बाद हम लोग तो देखे भी नहीं है कैसे जाएंगे नहीं जाएंगे। अब भगवान जाने कब बुलाएंगे गुरुजी की महिमा ही जाने संगत जी। अब जब बुलाए, हम तो सोचे हैं जब जाएंगे तो मित्तल अंकल को फ़ोन करके उनको पूछ लेंगे, उसके बाद उनके पास आज जाएंगे, माँ को भी ले लेंगे। अब देखिए गुरुजी की कृपा कब बरसे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर वेला का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगर हमसे कोई गलती हुआ होगा तो हमको माफ़ कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय संगत जी, आप सब सभी ओम संगत नमः को शिवाय, जय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुपा के श्री चरणों में गुरुजी का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। अगर बोलने में कुछ गलती हो गई हो अंकल आंटी, मुझे क्षमा याचना दीजिएगा। ये मेरा गुरुजी की कृपा से मैं उनके स्वरूप के आगे शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरुजी की मेहर बहुत है। गुरुजी जब हमारी ज़िंदगी में नहीं थे, हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन जब से गुरुजी हमारी ज़िंदगी में आया, हमारी ज़िंदगी बहुत बदल गई है। गुरुजी ने आते के साथ मुझे हेल्थ ब्लेस किया, फिर उसके बाद उन्होंने जो भी अड़चन थी हमारे घर ना बनने की, उनको बनाया। बच्चे जो थोड़े जिद थे उसको ठीक करे। अंकल के बहुत गुस्सा थे, अंकल का गुस्सा बहुत कम किया। अब अंकल का भी हेल्थ वो ब्लेस कर रहे हैं। गुरुजी का शुक्राना जितना करो उतना कम है। बस यही प्रार्थना है गुरु महाराज के श्री चरणों में कि अपने श्री चरणों में ही लगाए रखना। जिए तो भी मरे तो भी बस आखिरी सांस तक वो हमारे साथ ही रहे। सभी संगत का वो भला करे, अंकल आंटी का सब पे कृपा करे। जो आंटी हमारा संगत शेयर करती है उनके पर भी मेहर करे। आंटी आपका बहुत बहुत शुक्राना, गुरुजी का भी बहुत बहुत शुक्राना जो आप गुरुजी ने मुझे यह अमूल्य तोहफा इस जीवन में दिया, उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। जितना बोलो उतना कम है शुक्राना। गुरुजी की प्यारी संगतों को, सबका प्यारी संगतों को भी शुक्राना। गुरुजी का
गुरुजी है, गुरुजी सब कुछ देख रहे हैं, गुरुजी सब कुछ कर रहे हैं। बस गुरुजी से यही विनती है, जो जो भूखे हैं उसको खाना दीजिए, जिसके तन पे कपड़ा नहीं है उसे कपड़ा दीजिए, बस प्यासे को पानी दीजिए, और जिसके पास छत नहीं है उसे छत दीजिए। बस गुरुजी से यही प्रार्थना है, गुरुजी सबका सुने, सबकी अच्छा करे। गुरुजी है तो हम हैं, गुरुजी नहीं तो कुछ नहीं। बस मेरा बोलने का यही मतलब है, जो है गुरुजी है। गुरुजी आए हैं, ज़िंदगी बहुत बदल गई है। पहले हमारे घर में बहुत लड़ाई झगड़ा होते थे, अशांति रहता था। गुरुजी को 22 जुलाई 2024 से जुड़ी हूँ, तब से गुरुजी ने ऐसा हाथ थामा है कि सब कुछ ठीक करते चले जा रहे हैं। बस गुरुपा का ऐसे ही मेहर मेरे पे बना रहे। मेरा परिवार से मेरा कोई वो नहीं है, आपका आना जाना। बस गुरुजी मेरा परिवार है, संगति मेरी परिवार है। मैं दिन रात संगत सुनती हूँ जब मुझे टाइम मिलता है, और मैं गुरुजी से बहुत बात करती हूँ। बस यही है, गुरुजी अपना आशीर्वाद मेरे पे बनाए रखे, अपना हाथ कभी भी ना हटाए, चाहे मुश्किल घड़ी हो, चाहे अच्छी घड़ी हो, चाहे जो भी हो। बस जो है गुरुजी है। बस तुम्हें वो माता चित पिता, तुम्हें वो बंधु सखा, तुम्हें वो विद्याधरणम, तुम्हें वो सर्वमम देव देव। गुरु जी का मंत्र जाप ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का अमूल्य मंत्र है ये ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, मेरे हर एक श्वास का शुक्राना, मेरे हर एक रोम का शुक्राना, सुबह से लेकर रात का शुक्राना, हर एक श्वास का शुक्राना। जब मुझे टाइम मिलेगा मैं आपका शुक्राना ज़रूर करूँगी। हाँ, भले मैं मोबाइल में नहीं कर पाती हूँ, आपको संगत शेयर नहीं कर पाती हूँ, उसके लिए मुझे क्षमा याचना दे रहा, लेकिन मैं आते ही जाते गुरु जी के स्वरूप के सामने शुक्राना 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 करती ही रहती हूँ। कब सुबह से शाम हो जाता है, शाम से रात हो जाता है, कुछ पता नहीं चलता गुरु जी के श्री चरणों में। गुरु जी, मेरे को बहुत मन है आपका बड़ा मंदिर आने का, बहुत मन है संगत आंटी लोग कोई भी सत्संग करे तो उधर जाने का। प्लीज़ गुरु का कृपा करिए, मेहर करिए, इतना और कर दीजिए मनोकामना पूरा। मेरे को आना है, मेरे को देखना है कैसे संगत होता है, कैसे सत्संग होता है। हम भी कराएंगे, हम भी करेंगे। हमको संगत, एक दो संगत से मिलवा दीजिए ना, जिससे मैं जब करूँ तो उन लोग को बुलाओ, वो लोग करे तो मुझे बुलाए, तो वही मेरा परिवार हो जाएगा। जहाँ आप है वहीं पे तो मेरा परिवार है ना। उज्जवल उत्कर्ष को भी परिवार मिल जाएगा, मेरे को भी परिवार मिल जाएगा, अंकल जी को भी परिवार मिल जाएगा। हम तो चार अलग है ना परिवार से, बाकी तो सब है, सब कोई साथ में। तो हम चारों को आप पकड़ लीजिए, हो गया। कर दीजिएगा ना गुरु पाप। आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। कोई गलती हो तो मुझे माफ़ कर देना, क्षमा याचना देना। गुरु जी का मंत्र जाप ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी मेरे स्वरूप के सामने मुस्कुरा रहे हैं, सदा वो ऐसे ही मुस्कुराते रहे, ऐसी सभी संगतों को मुस्कुराता हुआ रखे, हर संगत पे अपना कृपा दृष्टि बनाए रखे। जो गुरु जी से जुड़े सच्चे दिल से गुरु जी उनका कल्याण करे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरु जी। मैं अपनी वाणी को यहीं पे पूर्ण विराम देती हूँ। कोई गलती हो तो मुझे माफ़ कर देना।